بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی۔ سب سے پہلے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ۔ میں آپ سے اپنا اگر اوپینین شیئر کروں تو میں ذرا ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوں اور زیادہ خوف زدہ بھی ہوں۔ میں رمضان نشریات کی وجہ سے بہت زیادہ فالو نہیں کر پا رہا ہوں آف کورس، لیکن میں نے آج شہر کراچی کے کم از کم جو منظر دیکھے ہیں وہ مجھے بڑے خوفناک لگتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم سب کو کہ اگر گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن کا فیصلہ کیا، فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس پر بحث بعد میں، لیکن یہ اگر فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن کا تو اس کا تعلق کورونا میں بہتری سے نہیں ہے۔ یعنی اس لیے نہیں لاک ڈاؤن میں فیصلہ کیا کہ جناب چونکہ کورونا سے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر لیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے کا تعلق پاکستان کے معاشی حالات سے ہے کہ لوگ بھوکے ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس لیے بات دلینہ خواستہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی یہ سوچ رہا ہے مجھ میں اور آپ میں سے کہ اب تو سب کھل رہا ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں تبھی تو سب کھل رہا ہے، اس لیے احتیاط کم کر دینے کی ضرورت ہے، تو یہ بڑی فاش غلطی ہو سکتی ہے جو کہ اگر ہر انڈیویجول نے کی، جو کہ لوگ کرتے نظر آئے ہیں سڑکوں پر، تو یہ بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ سے سب کو اپنی احتیاط ڈبل کر دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ تو ظاہر ایک سارا معاملہ ہے، معجزہ ہو جائے کوئی، ورنہ بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آج 11 مئی سے پاکستان میں کورونا کے میرے منہ میں خاک لیکن پھیلنے کا امکان بڑھ گیا ہے بیکاز آف ویری obvious reason کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور لوگ سڑکوں پر بھی اس عالم میں ہے کہ احتیاط بھی نہیں کر رہے ہیں اور کورونا تو پھیلتا جا رہا ہے، اس کے نمبرز ویسے بھی بڑھ رہے ہیں اور ایسے میں لوگ بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے اور اس میں کم از کم وہ جو بنیادی ترین احتیاط ہے، ہاتھ تو آپ دھو سکتے ہیں بار بار، سینیٹائز تو آپ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ بار بار، ماسک تو آپ پہن سکتے ہیں، فاصلہ تو آپ رکھ سکتے ہیں خاص حد تک، کیونکہ اس میں بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ تاکہ آپ کے ڈراپلیٹس کسی اور کو نہ جائیں جس سے کورونا پھیل سکتا ہے، یا کسی کے ڈراپلیٹس آپ کو نہ لگیں جس سے آپ کو کورونا لگ سکتا ہے، یہ احتیاطیں تو ہم کر سکتے ہیں، گلے نہ مل کر تو ہم گزارا کر سکتے ہیں، ہاتھ نہ ملا کر تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں کچھ عرصے تک۔ یہ احتیاطیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، لوگ چپک کے کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس پہ احتیاط کی خدا را بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ذرا پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے سربراہ جناب عتیق میر صاحب۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ تاجروں نے بھی تو اگری کیا تھا کہ جناب آپ ریلیکسیشنز دیں ہمیں لاک ڈاؤن میں، ہم SOPs فالو کریں گے، تو وہ کیا ہوئی؟ پروگرام میں آگے جا کے ہمارے ساتھ کیونکہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب موجود ہوں گے جو کہ خود کورونا کے پیشنٹ ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے اور اسمبلی کے آج کے اجلاس کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ سندھ کے گورنر بھی موجود ہوں گے جو کہ خود کورونا کے پیشنٹ ہیں اور سندھ گورنمنٹ ان سے بہت ناراض ہے۔ ایک تو سندھ گورنمنٹ کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ مٹیاری میں کورونا گورنر سندھ کی وجہ سے پھیلا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے فلاں آرڈیننس پہ وہ سائن نہیں کر رہے، زیادتی کر رہے ہیں سندھ کے لوگوں کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ، ملک احمد خان صاحب اور گورنمنٹ سائڈ سے جناب ہمایوں اختر صاحب موجود ہوں گے۔ آغاز کرتے ہیں جناب عتیق میر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ عتیق میر صاحب، بار بار میٹنگز میں تاجر ہمیں اور ٹاک شوز میں یہ کہتے نظر آئے، بڑا احترام ہے ظاہر آپ سب لوگوں کا، کہ بھائی آپ خدا کا واسطہ ہے آپ ریلیکسیشنز دیں اور ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ ساری احتیاط کریں گے۔ وہ احتیاطیں تو ہمیں آج ہوا میں اڑتی نظر آئی ہیں کراچی کی سڑکوں پہ۔ دیکھیے آج ایسا لگا کہ عوام کو بھی شاید ایسا فیل ہوا کہ وہ جیسے کہ قید خانے سے لوگ باہر آتے ہیں، اتنا بڑا ہجوم ہم خود ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے کہ یہ تو ایک طے بات ہے کہ ایک لاک ڈاؤن میں جو لوگ گھروں کے اندر تھے انہیں ایک محسوس ہوا کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ تو یہ ایک حکومت نے کام تو اچھا کیا، ہم شکر گزار ہیں حکومت سندھ کے کہ جنہوں نے تاجروں کو موقع دیا کہ وہ کاروبار کریں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے احتیاط نہیں کی، میں قطعی طور پر ان کی حمایت نہیں کرتا۔ میں یہاں دیکھیں لیکن آپ لوگوں نے بھی کائنڈ آف ریسپانسبلٹی تو لی تھی نا کہ ہم بھی اپنے طور پر جو ہو سکے گا کریں گے، وہ بھی ہوتا نظر آیا کیا آج؟ لیکن بادامی صاحب اس کے ساتھ قانون بھی ایک چیز ہے، ہم قانون کے سامنے آج کہیں کھڑے نہیں ہوئے، ہم نے واضح طور پہ کہا، جس کسی نے ہمیں کوئی DC یا AC نے ہمیں شکایت کی، ہم نے کہا کہ آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، آپ سیل کر دیں اس مارکیٹ کو۔ پھر یہ تو نہیں ہوگا کسی کے خلاف کارروائی ہو تو پھر وہ احتجاج ہو، پھر ان میں آپ کی اپوزیشن، یہ سندھ گورنمنٹ کی اپوزیشن پارٹیز کے MPs بھی آ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ الگ معاملہ بن جائے سارے کا سارا، ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہم یہ تو ایک خدشہ، یہ تو آپ کے ایک گمان ہے نا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوا بھی ہے نا ماضی میں، ماضی قریب میں، میں بھی کوٹ نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہیں کوئی کارروائی ہو، کہیں اگر کہیں وائلیشن کے خلاف کارروائی ہو تو میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ ایک بھی تاجر رہنما
उस मार्केट या उस दुकानदार के लिए खड़ा नहीं होगा। सही है, चलें, ये बड़ी जबरदस्त बात आप कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम सब ये चाहेंगे, मैं भी ये चाहूंगा, आप भी ये चाहेंगे और गवर्नमेंट्स भी ये चाहेंगी, चाहे वो फेडरल हो या सिंध की हो, कि ऐसी नौबत ही ना है। ये क्यों डंडे मारे हैं, क्यों हथकड़ियां, क्यों गाड़ियों में, क्यों मोबाइलों में डालें। तो अतीक साहब चलें, आज तो पहला दिन तो हो गया, अब कल से आज आप लोगों ने भी सूरत हाल देख ली, हम ये एक्सपेक्ट करें कि कल कराची की सड़कों में वाज़ेह तौर पर एक बेहतर सूरत हाल होगी निस्बतन? मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखिए बिल्कुल मैं एक मिसाल देता हूँ कि शादी के मौके पे जब खाना खुलने की आवाज आती है तो आप देखें कि इब्तिदा में मेहमान किस तरह उमड़ते हैं, टूट पड़ते हैं वो बर्तनों पे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। आज लोगों ने एक जैसे किसी बेयकीनी की कैफियत से बाहर आकर देखा कि क्या वाकई जो सुन रहे हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि हुकूमत सिंध 11 तारीख को कारोबार खोलने की इजाजत देगी। ये ताजरों को भी यकीन नहीं था। कल रात तक की रूमर्स थी कि कोई ना कोई देखें ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन जब सब कुछ खुल गया तो लोग हैरत ज़दा रह गए। तो इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन में नॉर्मल होगा। और मैं पूरी तरह से SOPs के हक में हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि SOPs को कोई फॉलो अगर नहीं करता तो उसको माफ कर दिया जाए। मैं इसके हक में हूँ कि जो वॉल्यूशन करे उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हक है। बहुत शुक्रिया जनाब अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं और उससे पहले एक और वजाहत भी कि पिछले हफ्ते जब मैं मेरी साथी एंकर ये प्रोग्राम कर रही थी तो वो एक टिकर एक बयान सिंध के मिनिस्टर के हवाले से चला था हेडर की सूरत में, जो कि उन्होंने उस अंदाज से नहीं कहा था। तो ये उसकी वजाहत कि वो जो एक बयान चला था वो एग्जैक्टली उन अल्फाज में वो बात नहीं कही गई थी। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैंने आपसे बताया कमर जमान कायरत साहब और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर साहब, नून लीग से मलिक अहमद खान साहब, गवर्नर सिंध और स्पीकर नेशनल असेंबली डिस्टिंग्विश पैनल हमारे साथ होगा ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं और आपको अभी ये इत्तला भी आई अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर पहले कि नफीसा शाह साहिबा की बहन को भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। अल्लाह ताला सबके साथ आसानियाँ फरमाए इंशाल्लाह। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं अख्तर साहब, अगर आपसे आगाज़ करूँ, ये बताइएगा जिस तरह अभी ताजिर रहनुमा से हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में, वो ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट करें कार्रवाई अगर कोई भी ताजिर फॉलो नहीं करता। तो आप ये बताइएगा, पहले तो मैं आप तीनों से चाहूँगा कि आप तीनों भी अपने तौर पर लोगों से कहें कि भाई खुदारा ज़रा एहतियात करें, और फिर गवर्नमेंट इसमें रिक्वेस्ट करने के साथ साथ बहरहाल कहीं कहीं अगर एक्शन भी अनअवॉइडेबल हो जाए, आइडियल नहीं है जिस तरह मैंने कहा कि लोगों को मोबाइलों में डालें और सारा कुछ करें, लेकिन अगर कहीं बहुत ही अनअवॉइडेबल हो जाए तो गवर्नमेंट को फिर ये भी करना पड़ेगा। क्या कहिएगा हुमायूं साहब? देखिए वसीम, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो फैसले हुए हैं NCC में, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और NCOC में, इसमें तमाम सूबों की और तमाम इदारे वफाक के या सूबाई जो इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ये उनका मुश्तरका फैसला होते हैं। लेकिन आपने बड़ी की चीज कही कि सारी दुनिया में लॉकडाउन रिलैक्स किया जा रहा है ताकि इकोनॉमी कुछ ना कुछ चलनी शुरू हो और वो बिल्कुल ही ना बैठ जाए। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं और वो बहुत ही सिंपल हैं। आप अपना फासला रखिए, आप मास्क पहन के बाहर निकलिए। हम बड़े मिलनसाज लोग हैं, लेकिन हाथ मिलाने से ग्रेस करें। वो छाती पे हाथ रख के आप किसी को सलाम कह दें। वो पुराना आपको पता है तुर्की का तरीका ये होता था कि छाती पे हाथ रख के सलाम कहा जाता था। इस तरह की प्रैक्टिसेस करें। ये सिंध में बड़ा है कि जनाब वो इस तरह से मिल लेते हैं, यानी आप कोई भी और तरीका मिल रहे हैं, हाथ जोड़ के बांध के जिस तरह भी, लेकिन इसको तो मिलने को तो अवॉइड किया जा सकता है। तो ये वो काम है जो हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है, कोई जहमत भी नहीं है। ये बड़ी सिंपल सादा सी चीजें हैं जो प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है कि कोई टीका लगवाना है या वैक्सीन लगवानी है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं फॉलो करना। अवाम को हम अपील ही कर सकते हैं आपके प्रोग्राम की मार्फत कि इन चीज़ों को एक्सरसाइज किया जाए। इन चीज़ों से जान बच सकती है, आपके अजीज़ व अकारब की जान बच सकती है। आप अगर मस्जिदों में जा रहे हैं तो नमाजियों की जान बच सकती है। अच्छा हुमायूं साहब, मैं भी कायरा साहब से पूछता हूँ, लेकिन आप मतलब कायरा साहब और मलिक अहमद खान साहब तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, लेकिन कायरा साहब की जमात सिंध में और आपकी जमात बाकी जगहों पर तो अपील से ज़्यादा भी कुछ कर सकती है। वो ये कि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स खोली हैं तो यही ताजिर भाई कल तक आप लोगों को यकीन दहानी करा रहे थे कि खुदा का वास्ता है सब खोलो, हम एहतियात करेंगे। अब अगर एहतियात ना कर रहे हो दुकानदार तो आप जा सकते हैं तंजीमों के पास कि भाई साहब आपने इन रूल्स और रेगुलेशन हमसे एग्री किया था, इनको आप फॉलो करवाएं वरना फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा।
بالکل کرنا چاہیے جی، کوئی شک نہیں. جو چیز طے پائی ہے آپس میں بات چیت میں مذاکرات میں اس پہ فل امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. یہ امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. لاک ڈاؤن کی ریلیکسیشن میں یہ برطانیہ نے لاک ڈاؤن ریلیکس کیا ہے لیکن ساتھ انہوں نے اپنے فائنز بھی بڑھا دیے ہیں کہ اگر یہ کرو گے اس کی وائلیشن تو فائن پہلے سے بڑا پے کرنا پڑے گا. قاہرہ صاحب بتائیے گا جناب، یہ جو لوگ جو بڑی احتیاطیاں کر رہے ہیں، پھر وہی بات کہ اگر آپ کی حکومت ہے سندھ میں، یہاں پر اگر وائلیشنز ہوتی ہیں تو جن تاجر رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد ریلیکسیشن ہوئی ہے ان سے باز پرس ہو سکتی ہے نا کہ سرکار آپ یہ تو احتیاط تو میک شور کروائیے نا. پھر وسیم بھائی میں نے پہلے گزارش کی، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے تھے اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے اس وقت ہماری بات اس طرح نہیں مانی گئی. فالو کیا اس کو لیکن ہول ہارٹیڈلی نہیں. انفارچونیٹلی وہ ہمارا قومی ریسپانس نہ بن پایا. اگر ہم قومی ریسپانس بنا لیتے، یونیفائڈ ریسپانس بنا لیتے تو 2-3 ہفتے کے اس سخت لاک ڈاؤن کے بعد جو بعد میں ہوا بھی، کاروبار بھی بند رہے، لوگ بھی گھروں میں رہے، لوگوں کو وسائل بھی ملے، کچھ نہ کچھ تکلیف بھی آئی، تو ہم شاید آج بہتر صورتحال میں ہوتے. لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کورونا کی وبا بھی رائج پہ ہے اور ہم نے ان کو کھولنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. تاجروں نے اگر اس بات پہ آ گئے کہ جی ہم نے کھولنی اور 3 صوبے اگر کہہ رہے ہیں، وفاق کہہ رہا ہے کہ اس کو ایز آؤٹ کرو، تو ایک صوبہ اپنے طور پہ اگر چاہے بھی تو نہ اس کی بات علماء سنیں گے، نہ اس کی بات تاجر سنیں گے، نہ لوگ سنیں گے. تو یہ ممکن نہیں رہتا. اور اس صوبے کا گورنر بھی وہاں سے وفاقی اور صوبائی جو ان کی جماعت ہے اور وفاقی وزراء بھی اگر اس بات کو وائلیٹ کر رہے ہو تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس عمل کو عمل درآمد کرانا. لیکن جو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، اتفاق رائے سے کیا، سب نے بیٹھ کے کیا، اس کے اوپر تحفظات کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے عمل درآمد کی بات کی، ایس او پیز دیے. ہماری بدقسمتی ہے، یہ میں گورنمنٹ کو بالکل بلیم نہیں کروں گا. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا قومی رسپانس بہت پور رہتا ہے. ہمارا قومی اداروں پہ اعتبار نہیں ہے اور جو وہ بات کرتے ہیں اس کو متصادم ہونا، اس کے اگینسٹ چلنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. نہ ہم علماء کی بات پوری طرح فالو کرتے ہیں، نہ ہم حکومت کی بات پوری طرح فالو کرتے ہیں. اور یہ تو ہماری جانوں کو خطرہ ہے. مطلب سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کرے اور وفاقی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ذرا کم کرے یا نہ کرے، تو یہ دونوں کی بات ہے لوگوں کے فائدے میں. تکلیف ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہے؟ حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ اپوزیشن کا کیا فائدہ ہے؟ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا کیا فائدہ ہے؟ پی ٹی آئی کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کا فائدہ ہے. گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اسٹیٹ کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی سختیاں کی جا رہی ہیں، اگر کوئی تجاویز دی جا رہی ہے تو صرف فائدہ لوگوں کا ہے. اور آپ نے بالکل درست کہا، دیہی علاقوں کے اندر لوگ آج بھی پریڈومیننٹلی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی آپ نے شور زیادہ کر رکھا ہے. وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جانتے ہیں کسی ایک بندے کو بھی جس کو کورونا ہوا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہوا ہی نہیں ہے. یہ صرف دیہاتی یا کم پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کہہ رہے ہیں، مذہبی لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے جیسے ملکوں میں کم ہو رہا ہے فلاں. تو یہ بدقسمتی ہماری ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کو پر فورس نافذ کرنا پڑے گا. یہی ہمارے ملک کا ایک المیہ رہا ہے. اگر وزیر اعظم صاحب نے اپیل کی تھی اور ان کی اپیل کے بعد اب یہ کورونا بہت تیزی سے پھیل گیا اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے. اس پھیلاؤ کے بعد ہم نے اس کو روکنا بھی چاہا تو شاید پوری طرح نہیں روک. اللہ رحم کرے. لیکن اب یہ بھی اللہ تعالیٰ اللہ کرے جو بات وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں ان کا مخالف ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے جو بات وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کے کم پھیلنے کے امکان ہیں یا یہ کم پھیلے گا، اللہ کرے ان کی بات درست ہو. اللہ کرے ہمارے تحفظات غلط ہو. آمین. صحیح بات ہے، صحیح بات. اب ملک احمد خان صاحب اگین میں پہلے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم ذرا پولیٹیکل بات کرتے ہیں بعد میں، لیکن آپ لوگوں کی بھی اپنی ایک فالوئنگ ہے. لوگوں سے آپ یہ درخواست تو کریں کہ احتیاط تو کریں. حکومت کے اس فیصلے کی آپ بھرپور تائید کریں یا بھرپور مخالفت کریں. مطلب یہ تو نہیں سکتا نا کہ میری یہ رائے ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کھول کے غلط کیا ہے اس لیے میں احتیاط نہیں کروں گا، اس لیے بغیر ماسک پہنے نکلوں گا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آج جس انداز سے لوگ نکل آئے ہیں یہ اگر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ طاق راتیں آ گئیں، پھر چاند رات آ گئی، تو یہ تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. ملک احمد خان صاحب جی شکریہ وسیم، آپ کی بات درست ہے. اور میں دیکھیں 2 باتیں اس میں کلیئرلی سجیسٹ کرتی ہیں کہ ایک تو ورڈ لاک ڈاؤن صرف پہ نہیں ہو سکتا. لاک ڈاؤن کی اگر کوئی بھی اس کی کوئی بھی پولیٹیکل
कॉनोटेशन हो सकती है कि अगर आपने शहरों का बिल्कुल मुकम्मल बंद करना है तो लॉकडाउन मीन्स के इन्फोर्स करना पड़ेगा, चाहे वो जुज़वी है, कुल वक्ती है या मुकम्मल लॉकडाउन है, ये आपको इन्फोर्स ही करना पड़ेगा। आप एडवाइजरी नेचर पे छोड़ दें कि जी ठीक है आप ये SOPs मेंटेन कर लें तो इसके साथ ये मामला बेहतर हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरी 1200-1300 साल की जो वबाओं की रिकॉर्डेड तारीख है, ये हेल्थ क्रॉनिकल्स में छपा है और उसमें उसका वाहिद तरीकाकार भी यही रहा है कि शहरों को मुकम्मल बंद करके इस वबा को रोका गया। आज तक ना उनके तरीक़ाकार में, यानी आपकी प्रोटेक्टिव गेयर्स भी इस्फहान की लॉकडाउन से लेके आज तक गिनने वही हैं, उसी तरह के, यानी मुकम्मल इंसान का एक्सपोजर रोका जाता है और उसके बाद डेड बॉडीज़ तक भी लोगों को नहीं जाने दिया जाता, कोई फ़र्क नहीं है। एक दूसरे से कांटेक्ट रोका जाता है, घरों को सील किया जाता है, बंद। कोई एक चीज़ का, चाहे वो इस सदी की इब्तदा के अंदर आए फ्लू की स्टोरी उठा के देख लें, चाहे शिकागो की स्ट्रीट्स देख लें, उसके बाद आप जितने भी फैलने वाली वबाई अमराज हैं, किसी भी आप एपिडेमोलॉजिस्ट की जिन्होंने इसके ऊपर लिखा है उठा कर देख लें, हैरान कुन हद तक एक मुमासलत पाई जाती है। 1000 साल में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन एक ये भी फैक्टर ना कि लॉकडाउन प्रैक्टिकली इसको चलाना भी कितना अरसे तक मुमकिन है। मैं इस पे आता हूँ, आपसे आगाज़ करता हूँ, लेकिन आज चूंकि कौमी असम्बली का भी इजलास हुआ है तो मेरे साथ एक में बात, जी आप बात कर लीजिए, फिर मैं असद कैसर साहब से बात करूंगा जो कि स्पीकर है कौमी असम्बली। जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जी मंतक बड़ी निराली है, यानी हम इसलिए लोगों को भूख से बचा रहे हैं कहीं वो भूख से मर ना जाएं, लेकिन उस भूख से बचाने के लिए, वो सनतों को चलाने के लिए आप वबा के जाल में उनको धकील रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल बात है, कैसी बात है सर? अब ये ठीक है, इसमें जरा मजीद बात होती है। वबा में धकेल रहे हैं का कहना, ये बात ठीक है, यानी आई एम श्योर कोई भी नहीं चाहता होगा कि लोग वबा की तरफ जाएं, लेकिन ये दो बड़ी टफ चॉइसेस में से एक करनी। वैसे बात करता हूँ आपसे आगे। असद कैसर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, आप हेड करते, आप स्पीकर हैं, लेकिन ज़ाहिर कोरोना की वजह से आप तो आज नहीं थे, तो आपकी अपनी अब तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज काफ़ी बेहतर है और इन्फेक्शन जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सांस का मसला जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकरीबन नॉर्मल हो गया है, शुक्र और 1-2 दिन में इंशाल्लाह हॉस्पिटल से मैं जो है ना साहब, बाकी फैमिली भी खैरियत से है? जी हाँ, ये कमर जमान कायरा साहब है, वो पूछ रहे हैं आपके अहले खाना भी ठीक है, खैरियत से हैं असद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। थैंक गॉड। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और जल्द से। आमीन आमीन आमीन। लेकिन एक ये मसला सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल फैमिली को बहुत बुरी मुतासिर करती है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपकी मीडिया से, क्योंकि मैं जब मीडिया आजकल मैं इस हालत में जो मीडिया देखता हूँ जी तो मुझे इंतहाई दुख और तकलीफ होता है। अच्छा, जिस तरह ये खबरें चलती है, जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज चलाती है, मतलब ये मैं तो टीवी भी देखता नहीं, अभी तो मैंने छोड़ दिया है टीवी को, खबरों को। अच्छा असद भाई, ये बात आपकी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन मेरी बहरहाल इस पर राय मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा लगता है, आप बिल्कुल कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस माहौल में थोड़ा सा कंट्रोल्ड कंट्रोल का लफ्ज़ पैनिक भी इसलिए ज़रूरी है, मेरी राय है, या पैनिक का लफ्ज़ अगर आपको सख्त भी लग रहा है तो लोगों को बताना, इसलिए कि जब तक लोग अपनी आंखों से देखेंगे नहीं। अभी मैं कायरा साहब से बात कर रहा था, मुझे इतने ऐसे लोग मिले जो कि ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करता है। वो लोग मुझसे पूछते हैं आपके किसी जानने वाले को हुआ है? तो मैं अब थोड़े दिनों पहले तक नहीं हुआ था, अब तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मामी है, आप दुआ भी कीजिएगा, जो कि इस वक्त आईसीयू में और कोरोना से जंग लड़ी है। कुछ दिनों पहले जब मैंने कहा कोई नहीं, उन्होंने कहा देखें किसी का भी कोई जानने वाला नहीं है, सब ड्रामा है। जहां ये माइंडसेट हो वहां अगर हम दिखाएंगे तो ही लोग शायद थोड़ा डरेंगे और एहतियात करेंगे। नहीं, मैं जिस वक्त जिस कैफियत से गुजर रहा हूँ मुझे पता है, खासकर मैं एक और सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, आप मेरी पोजीशन को भी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब बच्चे हों और आपके घर पे भी हो और फिर इस किस्म की खबरें, तो फ्रस्ट्रेशन, मैं ये नहीं कहता, मतलब रियलिस्टिक होनी चाहिए, बिल्कुल लोगों को एजुकेट करना चाहिए और उसकी जो वो सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन पैनिक की हद तक ही नहीं करनी चाहिए। सर, ये जो इजलास जो हुआ है आज, इस पर आपकी क्या राय? ऐसे माहौल में तो ज़रा इजलास को एक थोड़ा जो तस्वीर पेश करनी चाहिए थी हमारे नुमाइंदों को, हमारे नुमाइंदों की जानब जो मैसेज जाना चाहिए था, आपके ख्याल में ऐवान ने वो मंजर पेश किया है? असद कैसर साहब, आपने मीडिया के वाले से राय दी, जो कि ठीक है, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, आपके अपने इदारे से मुतालिक, ऐवान से मुतालिक क्या राय है आपकी असद साहब? मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए थी इजलास, लेकिन इसमें जो मैंने इस तरह किया कि जब ये सिचुएशन आया, अपोजिशन ने रिक्वेजिशन दाखिल कर दी, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब
और अपोजिशन दोनों को इकट्ठा बिठा के उसके सीनियर तरीन लोगों को बिठा के इसके लिए एक मुनासिब हल निकाले। और इसमें मैंने तमाम साबिका स्पीकर्स को डाला, यानी हमीदा मिर्जा साहिबा, अयाज सादिक साहब और फखर इमाम साहब और फिर नवीद कमर साहब और ये अच्छा मतलब जो सीनियर तरीन लोग हैं। जी तो उसको मैंने कहा कि आप इसकी लिए कर दे। फिर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आ गई इसमें। जी तो इससे बेसिकली एक अच्छा डिसीजन हुआ और मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी वाजिब करना चाहूँ कि आपको पता है कि एक पार्लिमानी कमेटी हमने ऑलरेडी जो है ना बनाई है और उस पर हमने बहुत रेगुलर मीटिंग्स की है, लेकिन पार्लियामेंट इसमें एक्टिव रहा है, पार्लियामेंट का एक रोल रहा है और इसके लिए जो जो इकदाम करने थे हमने किए हैं। तो आप ये वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की राय से आप इत्तेफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं, जो समझते हैं कि भाई वर्चुअल उस पर जा रही है सारी दुनिया, यहाँ इजलास में बाकायदा स्पीकर को हो चुका है, बाकी लोगों को हो सकता है, तो वर्चुअली बुला रहे इजलास, आपकी क्या राय इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक कलेक्टिव डिसीजन आ चुका है, मैं इस पे कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि एक कलेक्टिव डिसीजन है। अच्छा, और कलेक्टिव डिसीजन जो भी आया है तो बस मैं उसको फेवर करूंगा। लेकिन अभी हमें, क्योंकि जब सिचुएशन के मुताबिक जो है ना आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ता है। ठीक है। और असद कैसे साहब, ये ऐवान के इस अहम तरीन इजलास में कायदे ऐवान तशरीफ लाएंगे, लाना चाहिए उन्हें तशरीफ? मैं तो इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, मुझे क्या पता है, मैं तो किसी का टेलीफोन ले भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये पहली दफा मैंने आपका टेलीफोन दिया। नहीं, आपकी मोहब्बत है, आप जज़ाकल्लाह, आई एम सो ग्रेटफुल, बहुत बहुत नवाजिश। मैं क्योंकि वो मुझे प्रॉब्लम आ जाती है जब मैं ज्यादा बातें करता हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत मालूम करना मकसूद था और हमें खुशी है, इत्मीनान है, और आई एम सो श्योर सारे मेहमानों को, कायरा साहब को भी और मलिक अहमद खान अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको आराम दे और फैमिली को आराम दे, सारी कौम को आराम। आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया असद कैसा, बहुत शुक्रिया। चलें, ये एक अच्छी खबर है कि असद कैसा साहब की तबीयत बहुत बेहतर है और उनके साहबजादों, उनके जो बच्चों को भी ये मसला था, कोरोना की तशखीस हुई थी, वो भी हालात बेहतर हैं, शुक्र है अल्लाह का इस हवाले से। आप ये बताइएगा, हुमायूं अख्तर साहब, अब अगेन शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐवान में वही कुछ होना है जो कि रोज़ाना रात को टॉक शोज़ में हो रहा है, मफहूम था उनकी बात का, तो फिर ऐसा इजलास फिर ना हो, फिर ठीक है। अब ये इन हालात में जिस तर्ज का इजलास हुआ है, आप मुतमईन हैं हुमायूं अख्तर साहब? देखिए, इजलास तो सबसे अहम इदारा है मुल्क की पार्लियामेंट, और जो आजकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है दुनिया में, उसमें उसके तहत हमें इन पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा करना है। और देखिए, जमहूरियत में टॉक शोज में भी आपको अपना मौक़िफ़ पेश करना है और मुख्तलिफ आरा सब तो तहम्मुल से सुननी है, और यही रवैया पार्लियामेंट्स में भी होना चाहिए। यही मकसद होता है, इसी ब्रेनस्टॉर्मिंग से बेहतर फैसले होते हैं और बेहतर नतायज सामने आते हैं। तो अच्छा। अभी तो खैर बजट का टाइम भी आ रहा था और इस सिलसिले में भी हमें कुछ तरीक़ाकार निकालना है कि बजट पेश कैसे किया जाएगा और पास कैसे कराया जाएगा। तो मुझे तो खुशी है कि चलें, आज इजलास शुरू हुआ और उम्मीद करता हूं कि बखैर आफियत आजकल के हालात में सब मेंबरान और सारे जो स्टाफ है उनकी खैरियत के साथ ये पाया तकमील। खैर साहब, आप बताइएगा कि आवाम के नुमाइंदों का इन हालात में इजलास आवाम के लिए किस अंदाज से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? वसीम साहब, पहली गुजारिश, इजलास होना चाहिए, बाकी इदारे मिल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ कारोबार खुल रहे हैं, अदालतें लगी हुई है, एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, पार्लियामान क्यों काम ना करे, कैबिनेट मिल रही है, पार्लियामान क्यों ना मिले? क्या पार्लियामान का इतना बड़ा हाल है वसीम साहब, वहाँ आप विजिटर्स बंद कर दे, और विजिटर्स के बाद आपको पता है दोनों हाउसेज का जॉइंट सिटिंग होती है, 400-450 से ज्यादा मेंबर बैठने की से भी हमारे पास सीटें ज्यादा होती है, फिर साइडों पे गैलरीज है, ऊपर वाली गैलरीज इस्तेमाल हो सकती है, तो वहां तो 20-20 फुट पे भी अगर मेंबर बैठे, और आम सेशंस के अंदर 200 से ज्यादा हाजिरी नहीं होती, आप विजिटर्स को बंद कर दें, और इतना बड़ा हाल है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको सैनिटाइज किया जा सकता है। आप वीडियो इजलास के हामी नहीं है? मैं वीडियो इजलास का हामी नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि इजलास होना, और इसके सिंबॉलिक वैल्यू भी बड़ी है, इसकी अपनी फिजिकल वैल्यू है, एक सिंबॉलिक वैल्यू है कि कौम को भी एक मैसेज देना, आप लोगों को तो हौसला दे रहे हैं और आप प्रोटेक्टिव रह के बिल्कुल इजलास करें। लेकिन सवाल यह है कि एक तो अपोजिशन सवाल करेगी,
गवर्नमेंट से मुश्किल सवाल करेगी। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जिससे अपोजिशन मुत्तफिक नहीं है, लिहाजा अपोजिशन का क्रिटिकल रोल होगा, वो एतराज उठाएगी। गवर्नमेंट को सब्र से सुन के अपना नुक्ता नजर देना पड़ेगा। आज आपने अगर इजलास में बिलावल साहब की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने उस एतराज भी उठाए और सजेशन भी दी, लेकिन उसके जवाब में जो मुराद सईद साहब का रवैया था, अगर उस रवैये से चलना हो तो फिर सारे मेंबरान को नहीं, जो मेंबर हालात को खराब करने के जिम्मेदार है, काइंडली उनको देखा जाए और हुकूमत वक्त इससे कुछ सबक सीखे कि भाई अपोजिशन ने अगर आपको कहना है कि आपने ये स्टेप लिया तो गलत लिया, अगर आपने एक पैकेज अनाउंस किया तो उस पैकेज में ये बातें तो आपने मफरूजे के तौर पर डाल दी है, तो उसकी वजाहत हुकूमत को करनी है ना, या गवर्नमेंट से लोगों ने अकाउंटेबल उसको ठहराना है। नहीं कायरा साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की अपोजिशन के पास ये हक है कि हुकूमत पे तनकीद करे, तो फिर आप इस हक से मुराद सईद या किसी हुकूमती रुकन को क्यों महरूम कर रहे हैं? अगर वही काम नहीं कर रहा, उसके जवाब में अगर आप पर्सनलाइज हो जाएं, उसके जवाब में अगर आप गालियां देना शुरू कर दें वही माजी में कि आपकी हुकूमत इतना अरसा रही, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, सिंध में आपने ये नहीं, ये उसका जवाब नहीं है। अगर आप ये नहीं कर रहे, ये सिर्फ तनकीद है, तो आपने ये नहीं किया, ये भी सिर्फ तनकीद है ना, ये गाली कैसे है? देखिए ना, गुजारिश ये है वसीम साहब, जो कुछ हमारे दौर में हो सकता था वो हुआ। आज जो उनका भी वही मौका है कि हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं, बाकी पिछले नहीं काम खराब कर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, हम जो कह रहे हैं वो बातें हैं जो आलमी इदारे भी कह रहे हैं, जो मीडिया भी कह रहा है, जो साइंसदान भी कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आज गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। हम अपनी राय नहीं दे रहे, हमारी अपनी राय मुख्तलिफ लोगों की आरा पे और आलमी तजर्बे पे और बेस्ट तजर्बे पे शामिल हैं, उसको हौसले से गवर्नमेंट ने सुनना है। उसके जवाब में अगर पगड़ी निकालने वाला वही काम होगा। जी हुमायूं साहब रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर। हुमायूं साहब जी, फिर आता हूं मलिक साहब। जी हुमायूं साहब। सर मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि लग ऐसे रहा है कि सिंध हुकूमत का किसी किस्म का कोई डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर और सिंध के आला अफसरान बैठे होते हैं। सही है। NCOC जो है उसमें सिंध हुकूमत के अफसरान, इदारे, तमाम लोग बैठे होते हैं। सही है। ये फैसले आपस में उधर बहस व तकरार होती है, उसके बाद मुश्तरका फैसले होते हैं। तो अभी हमें ये तो ना बताएं कि आप ये क्या, उधर भी सारी दुनिया से इनपुट आती है, इन दो हाईएस्ट मुल्क की बॉडीज में सारी दुनिया से इनपुट आती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या रिसर्च हो रही है, क्या चीज ज्यादा फायदेमंद है, क्या दवाई ज्यादा फायदेमंद है, किस तरह का प्रोटोकॉल होने चाहिए, उसके बाद ये फैसले। वैसे मैं हुमायूं साहब को इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन कायरा साहब, ये गवर्नमेंट के लोगों का बहुत शिकवा है, वो कहते हैं आपके लोग उन इजलासों में जिसकी हुमायूं साहब बात कर रहे हैं वहां कुछ और टोन और बात करते हैं, और फिर यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी कोई टोन और होती है। मैं छोटी सी गुजारिश करूं, पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि वहां आंखें बंद करके फैसले हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो कामयाब तजर्बे हैं, और आपके अपने डॉक्टर अताउर रहमान साहब इस हुकूमत के एडवाइजर हैं, वो क्या कह रहे हैं, आपके अपने वज़रा क्या कह रहे हैं। कुछ वज़रा हैं जो वज़ीर आज़म साहब की बात तो चले वो हो गया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, आपको याद होगा ना, सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने कहा मेरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ था, मेजोरिटी की राय के साथ में खड़ा हूँ, फैसला मान रहा हूँ, भारी दिल के साथ डर लग रहा। ये था ना इत्तेफाक राय, ये था तहफ़्फ़ुज़ उसका सीएम सिंध का, और सीएम सिंध ने खुल के बात की है। लेकिन ये बातें अगर हम ACOC की या प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग्स हैं उनके बातें अगर हम यहाँ खुल के करने शुरू कर देंगे कि वहाँ हमने ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो ये जो थोड़ा बहुत एक आपस में वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी खराब हो जाएगा हमारे। अच्छा चलें, पॉइंट टेकन, ठीक है। इस तरह मजीद बात करते हैं। कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा आगे एक जगह बहुत बहुत शुक्रिया कमरमान कायरा साहब का। हमारे से हुमायूं अख्तर साहब और मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। कोशिश करते हैं गवर्नर सिंध से ही बात करते हैं इस ब्रेक के बाद कि जिन पर ये इल्ज़ाम है कि जनाब वो उस अंदाज से कोऑपरेट नहीं कर रहे सिंध गवर्नमेंट के साथ, कि जैसा करना चाहिए था। ब्रेक के बाद सिंध के गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो बताइएगा, आपको कोरोना आपका टेस्ट पॉजिटिव आया था, फिर आपने तकरीबन 5 रोज पहले दोबारा टेस्ट करवाया और वो फिर पॉजिटिव आया अनफॉर्चुनेटली। तो अब आपका इस वक्त कैसी तबीयत है और क्या आप दोबारा टेस्ट करवाने का इरादा रखते हैं, कब? वसीम, मैं अपेरेंटली तो वैसे ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मालिक ने करम किया, लेकिन सिम्टम्स मुझे सारे थे ड्यूरिंग कोरोना। अच्छा। शुरू में तो 3-4 दिन 5 दिन तो मुझे लगा कि शायद मेरा टेस्ट जो है वो ठीक नहीं हुआ, या क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा,
बट उसके बाद मुझे शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, बुखार, खांसी, नॉजिएटिव, बॉडी एक्स, हर चीज ही अच्छा होने लगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आई वाज अंडर क्लोज मॉनिटरिंग। मेरे दोस्त डॉक्टर्स हैं, एक अमेरिका में है, उनका वो भी हमने एक चैट ग्रुप बना लिया था। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे जो बाहर थे, सही है। वो सारे साथ थे उसमें। तो दे वर मॉनिटरिंग मी कॉन्स्टेंटली। अब आप क्या दोबारा टेस्ट कराने का इरादा रखते हैं? जाना पड़ता है, लेकिन कोरोना का एक भरपूर अटैक था उसमें। और आपको कोई अंदाजा है, आपको ख्याल है कि आपने कहाँ से इसको? बहुत बड़ी चेंज एक उसमें आई है मेरी तबीयत में कि मुझे अब वो कोई फीवर नहीं है, कोई बॉडी एक्स नहीं है, कोई ऐसे कोई सिम्टम नहीं है जो मैं कह सकूं कि कोरोना की वजह से मुझे होगा। चल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान इस्माइल साहब, आप दोबारा कोरोना का टेस्ट कराने का फिर इरादा कब रखते हैं? जी, मेरा इरादा है कि एक आध दिन में कराता हूँ, कल या परसों में कोई टेस्ट दोबारा करवाता हूँ। आपको इसका कोई अंदाजा है कि आपने कहाँ से आपको ये लगा है, कोई रफ आइडिया? कह नहीं सकता। मेरे यहाँ एक दो इंटरव्यूज भी हुए हैं, उसमें मुझे पता चला था किसी एक चैनल का था, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनके कोई मेकअप आर्टिस्ट को था कोरोना, ही वाज डिटेक्टेड कोरोना आफ्टर माय इंटरव्यू। तो उसके बाद फिर हो सकता है मुमकिन है उससे कैरी किया हो, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि उससे कहाँ से आपने कैरी किया या किससे आपको लगा। इम्पोर्टेंट ये है कि ये इस वक्त एक ऐसी चीज है जो शहर में किसी को भी किसी से लग सकती है या खुद कहीं से कैरी हो सकता है। जब हो जाए तो उसके बाद करना क्या है आपने। सही। मेरे लिए ये जो आज 15 दिन हो गए, ये 15 दिन मेरी लाइफ के बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन में मुझे ले गए। एक अजीब ही मैंने दुनिया देखी इस 15 दिन के अंदर। अच्छा। यानी मेरी खुद से मुलाकात हुई। I met इमरान इस्माइल for the first time। मैंने कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश की। मैंने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले जो मैंने किए वो ठीक थे कि गलत, उनको एनालाइज करने की कोशिश की। बहुत सारी मैंने बुक्स का मुताला किया। मैंने बहुत सारी ऐसी थॉट प्रोवोकिंग ऐसी चीजें थी कि जो जिनको मैं लिखता गया अपने नोट पैड के ऊपर, और फिर मैं उनको पढ़ के सोचता रहा कि ये कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं आने वाले वक्त में, ये हमने किधर गलतियां की हैं जिसको हम सुधार सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी और इज्तिमाई तौर पे, जैसे हम अपने मुल्क के लिए जो कर सकते हैं इस वक्त पावर में होने के नाते, उसको हम कैसे और चीजों को ठीक कर सकते हैं। सही है। डेली कम्युनिकेशन इस तरह की, मैं जो रेलेवेंट इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको मैं अपनी थॉट्स भेजता रहता हूँ रोज के। ये सही, गुड, जबरदस्त। अच्छा इमरान साहब, ये आपकी भी मतलब ज़ाहिर हमने सबने देखी सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर गर्दिश करती रही कि जब आप मटियारी या बाकी जगहों पर गए थे, आपको ये आपकी ताजिरों से मुलाकात हुई, इसमें यानी आपको लगता है कि शायद आप इससे ज़्यादा बेहतर एहतियात कर सकते थे, थोड़ा सा कहीं आप जानकर या अनजान में बद एहतियाती हुई थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग के एतबार से और बाकी हवाले से? देखिए, नंबर वन तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोरोना मुझे हुआ है तो मेरी अपनी बेहतियाती की वजह से हुआ होगा। आई विल नॉट ब्लेम एनीवन फॉर दिस। नंबर टू ये कि बड़ा अफसोस मुझे हुआ ये देख के कि जिस तरह मटियारी को पॉलिटिसाइज किया गया कि जी मटियारी गए वहाँ पे कोरोना हो गया, जो गवर्नर से मिला था उनका टेस्ट होगा, गवर्नर जिनके घर गए थे वहाँ पे टेस्ट होगा, फिर पुलिस वाले का भी टेस्ट होगा, फलाने का भी होगा। व्हाट इफ गवर्नर वुड नेवर वेंट टू मटियारी, फिर क्या होगा? मैं लड़काना तो नहीं गया, तो लड़काना का जिम्मेदार कौन है कोरोना फैलाने का? हाँ, हर जगह की अपनी अपनी रीजन हो सकती है ना। मैं नहीं कह रहा कि मटियारी की रीजन आप हैं, लेकिन अगर जिस तरह किसी को आप भी अगर किसी से मिलेंगे उसको कोरोना होगा तो आप चाहेंगे ना कि आप टेस्ट करवा लें। ऑफ कोर्स नहीं, मैं वो तो नहीं कह रहा, लेकिन एक ये पॉलिटिकल एक चीज वेव ये आई थी जरूर कि जी मेरे मटियारी जाने की वजह से ये वहाँ पे कोरोना फैल गया। हाँ, ये तो अल्लाह जाने, सही बात, इसमें तो किसी को ब्लेम करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सही बात। किसको हुआ? नहीं, आपको लगता है कि थोड़ा सा बेहतर प्रोटोकॉल फॉलो हो सकता था उन जगहों पर जहाँ पर आप गए थे? नहीं, जाहिर है हो सकता था और होना चाहिए, लेकिन मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि क्योंकि हम ऐसे रिमोट एरियाज में जब जाते हैं ना वसीम, तो वहाँ पे लोगों को इल्म ही नहीं है कि कोरोना में एहतियाती तदाबीर करनी कैसे है क्या, और वो बेचारे तो अपने रोजमर्रा की इतनी मुसीबतों जंजाल में लगे हुए कि उन्होंने तो, अगर आप लॉकडाउन का तस्वर नहीं कर सकते कि उन्होंने तो पानी लेने नहर पे जाना ही जाना है, पानी का लाइन तो घर पे नहीं आ रही, तो आप लॉकडाउन कैसे करेंगे? उन्होंने तो अपनी जो सब्जियां फल जो पकाने हैं वो तो लेने उन्हें खेत ही जाना होता है, वहाँ कोई सब्जी वाला तो नहीं है, तो वो आप लॉकडाउन कैसे करेंगे? तो दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकडाउन। अच्छा, एक ही बात और बताने जाते जाते, ये ऑर्डिनेंस आप साइन नहीं कर रहे तो वो कहते हैं जनाब ये देखें सिंध गवर्नमेंट के साथ ये तो हो रही ज्यादती हो रही। यार इट्स अ वेरी फनी थिंग। देखिए, हुआ ये है कि ये ऑर्डिनेंस जो इन्होंने मुझे भेजा था, एक तो नंबर वन ये कि मैं उस वक्त आई वाज इन क्वारंटाइन, आई एम स्टिल इन क्वारंटाइन, राइट।
कौन से कैसे फाइल आएगी, कैसे साइन होगी, उसको कौन लेके जाएगा, साइन मेरे साथ की साइन की फाइल का उसका क्या होगा, तो वो एक अलग मसला था। एनीवेज वो किसी तरह मैंने, क्योंकि इधर से प्रेशर बहुत था, ठीक है, मैंने वो फाइल मंगा के सारी पढ़ी, मैंने अपने जो लॉ डिपार्टमेंट है उससे मशवरा किया। उसके अंदर एक बड़ी काबिल एतराज चीज ये थी कि वफाकी इदारा है गैस और बिजली का, उसको उन्होंने डायरेक्टिव दे रहे थे कि जी वो 3-3 महीने के बिल जो हैं वो माफ कर दें। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको ये कहूँ कि बदामी साहब आज से आपकी तनख्वाह मैंने जो है ना 3 गुना कर दिया, या आप पूरे एयरवाइज हमारे आजकल तो कम हो रही है ना, आप दूसरी मिसाल नहीं मैं मिसाल एक बात कह रहा हूँ, चले मैं कहता हूँ 3 महीने की तनख्वाह एयरवाइज की मैंने बंद कर दी। हाँ, ये ज्यादा रेलेवेंट है ये आपको ज्यादा समझ है, तो उसमें वो कर तो नहीं सकता मैं एज गवर्नर, वो तो एयरवाइज है डिफरेंट एंटिटी। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो फेडरल वफाक खुद कर सकता है, वो सूबा नहीं कर सकता, कोई भी सूबा वफाक को डायरेक्शन नहीं दे सकता ये। तो मैंने उसके ऊपर इतराज लगा के कोई आज मेरा ख्याल है 4 दिन हो गए मोर कि उनको मैंने वापस भेजा हुआ है, दे आर गोइंग थ्रू इट। पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि असेंबली में तकरीरें करने से पहले कि वो ऑर्डिनेंस आपके पास वापस जा चुका है, मेरे पास नहीं है। ओके ओके, ठीक है। यानी ये इस आप कह रहे हैं इस शिक पर टेक्निकली ये एतराज है, ये रिमूव हो जाए तो फिर साइन हो जाएगा, क्योंकि इस पर सिंध गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार ही नहीं है उस दायरे पर। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को वफाक ने एक खत लिखा था सूबाई हुकूमत को, उसमें मेंशन किया था क्लियरली उन्होंने कि जी ये जो आप करने जा रहे हैं, क्योंकि ड्राफ्ट इन्होंने बाहर आ गया था किसी तरह से, तो उन्होंने वफाक ने खत लिखा कि जो आप करने जा रहे हैं ये इलीगल है, आप ये नहीं कर सकते, और उसकी सारी उन्होंने शिकें उसके अंदर कोट की थी इनको, ऑफिशियल लेटर लिखा था, बट अगेन इट वाज देयर। तो अब उसकी आई डोंट नो क्या किस इंटेंशन से उसको डाला गया था, जबकि दे ऑलरेडी हैड डिसाइडेड। आप कह रहे हैं इस क्लॉज को रिमूव कर दें, उसके बाद साइन कर देंगे आप? क्लॉज को रिमूव कर दें, मैं फिर उसको दोबारा पढ़ लूंगा, पता नहीं उसके अंदर और कोई चीज मजीद होगी तो उसको भी देख लेंगे। बट एक चीज मैं आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि एनीथिंग दैट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल ऑफ सिंध, आई विल साइन इट। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से बात कर रहे थे। मेहमानों की तरफ आते हैं, जरा डिबेट को अब समेटते हैं। अब मलिक अहमद खान साहब ये बताएं, एक आम आदमी जो ये प्रोग्राम देख रहा है और जो कि देख रहा है कि अब लॉकडाउन में भी रिलैक्सेशन हो गई है, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है, और मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो कोरोना सामने ऐसा लगता है पर फैलाए सामने खड़ा है, तो अब क्या है सामने एक आम आदमी के लिए? नहीं, कन्फ्यूजन तो बन गई है। अब इसको समहाउ ये मसला डिटर्मिन कैसे होगा कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं कहना नहीं चाह रहा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि इसने अपना बिहेवियर कहीं चेंज नहीं किया, और खुदा न खास्ता जैसे पूरी दुनिया के कम बेश 180 ममालिक में इसने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, तो ये इस रीजन में भी चेंज शायद ना करे, और ये इसकी पीक ऐसी आती है, ये इतना बढ़ता है नंबर, तो फिर दोबारा से हुकूमत को इन्फोर्समेंट की तरफ जाना पड़े, प्रॉब्ली ये। लेकिन अगर यही कंडीशन है जिसमें आज है, लेकिन आज मैं पंजाब असेंबली गया, जी इजलास हो रहा था, हमने खुद डिमांड करके इजलास मांगा कि इजलास करें, सही है। तो बाकी सारे लोग काम कर रहे थे, हमने कहा कि ये बड़ा मायूब लगेगा कि हम लोग घरों में बैठे और काम नहीं कर रहे, सही है, वैसे भी फील्ड में हल्कों में फिर ही रहे हैं तो इजलास भी हो जाए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो असेंबली इटसेल्फ एक हॉटस्पॉट है, वहाँ 10 एम्प्लॉइज़ को कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव निकला है, तो आप बताएं वेयर टू स्टैंड। यानी मैं जो कल तक दुरुस्त समझ रहा था कि हमें इजलास करना चाहिए, आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमने मुनासिब नहीं किया, और वहाँ पर कई हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस ऐसे थे, कई रुकने असेंबली ऐसे थे जो 75 प्लस हैं और अंडरलाइन कंडीशंस के साथ हैं, उन सबको हमने एक्सपोज कर दिया वहाँ पे। So then, हुमायूं साहब, now this is so alarming. Now where are we heading? क्या किधर जा रहे हैं फिर? देखिए जी, ये एक बैलेंस हमारी दुनिया रख रही है लाइव्स एंड लाइवलीहुड का, और इसी के नतीजे में ये स्मार्ट लॉकडाउन प्रोसेस जो कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड क्वारंटीन का एक प्रोसेस है। अब मैं लाहौर का आपको बता सकता हूँ, किसी भी फैक्ट्री जिसको चलने की इजाजत है या कोई इलाका जिधर कोरोना केस आइडेंटिफाई हो, तो बहुत फुर्ती के साथ इंतजामिया होती है, लोगों को टेस्ट किया जाता है, ट्रैकिंग होती है कि किस किस से मिले, क्वारंटीन में लोग जाते हैं, और आगे हमने देखिए हमारी प्रायोरिटी है
جانوں کو بچانا ہے. اس کے بعد جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، پہنچنا ہے. ہم نے اپنا ہاسپٹل ہیلتھ کیئر نظام کو ایکٹیو کرنا ہے کہ سرج ہو تو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم نے چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ مکینک کی دکان ہو، یا ریڈی والا ہو، یا ایس ایم ای ہو، یا کاٹیج انڈسٹری ہو، یا بڑی انڈسٹری ہو، ہم نے سب کو بچانا ہے. بیکاز جب یہ کرونا انشاءاللہ ایک دن ختم ہوگا تو اسی انڈسٹری میں لوگوں نے واپس آ کے. So you are sure that right now smart lockdown is a smart thing to do? کیپنگ اے بیلنس. دنیا کے بہت سے ممالک میں اس پر آپ دیکھیے کہ برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے، نیو یارک آہستہ آہستہ کھول رہا ہے، کیلیفورنیا آہستہ آہستہ کھول رہا ہے. لیکن جو پروگرام کے شروع میں وسیم بھائی آپ نے بات کی کہ اس کا مطلب لاک ڈاؤن ریلیکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بغیر ماسک کے اور سوشل ڈسٹینسنگ نظر انداز کر کے اور جو گورنمنٹ کے اور ساری دنیا میں جو احکامات حکومتیں جاری کر رہی ہیں ان کو نظر انداز کر کے اور گھل مل جائیں. یہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے، اللہ نہ کرے. تو اب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ ملک احمد خان صاحب. آج تو نون لیگ اجلاس بلانے کی بہت حامی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب بھی حاضر نہیں ہوئے آج. نہیں دیکھیے، شہباز صاحب کو تو ہم نے بڑا اسٹرکٹلی ریکویسٹ کیا ہے کہ سر بالکل آپ کو انڈر اینی سرکمسٹانسز نہیں جانا چاہیے. ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کینسر سروائیور ہیں. ان کے ڈاکٹرز نے بڑا اسٹرکٹلی روکا ہے. ان کے امیونٹی لیولز بڑے لو ہیں. نیوپلازم آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ایک بڑی سویئر کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ اس کا امیونٹی کو بیڈلی افیکٹ کرتی ہے، اور اس میں ڈاکٹرز کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے. کسی صورت بھی شہباز صاحب اگر ان کی خواہش تھی جانے کی، لیکن وی آل ایڈوائزڈ ناٹ ٹو گو. رائٹ، ٹھیک ہے، لیٹس سی. بہت شکریہ آپ کا. اچھا اب آخری بات آپ بتا دیں ملک احمد خان صاحب، آپ نے پنجاب اسمبلی کا بتا دیا، اب آپ کی کیا اوپینین ہے؟ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رہنا چاہیے یا بار بار بلانا چاہیے، یا ہمیں ویڈیو اجلاس کا سوچنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، میں کل تک اس رائے کا حامی تھا کہ اگر باقی سارے آئینی ادارے چاہے وہ کورٹس ہیں،